So thank you all. First of all, it's India Pakistan match, and you guys have take out your time to join this session. So thank you. So you are feel free to ask questions, whatever you have, or you can post it somewhere in chat, and I'll just request the moderator to recollect the questions and they can ask at the end of that or in between that. So basically, as I was told with the things that you guys are interested in knowing with the placement preparation and somewhere related to gate and again the computer vision part. So we'll discuss something related to that. Whatever things are there, whatever going on in this field. So we'll start with that. So anything you want to add, Amrit, you can add it right now. Guys, am I audible to all of you? Because I'm not getting any feedback from your side. So I got one question related to that my gate score is very low. And see, I'll make something in summary, two three things. I just what I have planned, so I'll make sure. So whatever people have joined, just pin something in the comments that are you able to hear me completely? Do you have any type of lag or anything you're facing anything? So please put in the comments. Yes, sir, we can able to hear you correctly. Okay, okay, thank you. So anyone is facing problems, so at least they raise the things like if no one has a problem, it's good. We'll start. So first of all, wherever you are, there are two ways because see when we start our BTech journey, are you comfortable with Hindi, English, or you want mix of these things? Both language, sir. You can even mix it. Okay, okay, ठीक है, कोई बात नहीं. So see, if you are especially when you join the college, like we generally see that कि हमें क्या करना है अभी प्लेसमेंट करना है, we want to go for placements or we should set for gate or directly start UPSC preparation. So ऐसा होता है. So what we should do? So in that journey specifically, I'll just mention it here कि अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड ईयर में ही अपने प्लान्स को डिटरमाइन कर लेते हो कि मुझे क्या करना है, तो वो आपके नेक्स्ट फोर्थ ईयर के बाद तुरंत जॉब लग जाएगी किधर भी हो. Suppose I was placed in 2019. I had three options. Like I was placed for Dell also. I was placed in I got the call from ISC Bangalore for the MTech AI program also, and I got call from Bhabha Atomic Research Center also. So three things was there at right now at that moment, and it needs a proper plan because अच्छा है ठीक है in college we generally we enjoy that thing कि यार 4 साल है आराम से करेंगे. So it is you have to definitely, but you have to parallelly make the plans for your future also. This is the first point. I'll make sure for you, all of you guys. और गेट की प्रिपरेशन या तो आप एक साल में कर सकते हो कि आप लास्ट ईयर में आपने आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है अभी गेट एंड आई हैव टू भाई अब 4-6 महीने बचे हुए हैं 10 महीने बचे हुए हैं एंड दैट आई हैव टू मेक श्योर कि सिलेक्शन हो जाए और मुझे रैंक भी अंडर 100 चाहिए. सो ऑब्वियसली पॉसिबल है अगर आप सब कुछ छोड़ के प्लेसमेंट की प्रिपरेशन छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो तो शायद लग के शायद निकल जाए. बट अगर आपने सेकंड ईयर से ही प्लान करके रखा है तो क्या दिक्कत है, तो आप दोनों मैनेज कर सकते हो. तो आई जस्ट मेक श्योर कि जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हो आप लोग जो भी लोग सुन रहे हो ये ध्यान रखो कि आपकी प्रिपरेशन ना थ्रू आउट होनी चाहिए. थोड़ी थोड़ी हो लेकिन थ्रू आउट हो कंसिस्टेंटली. इफ ऐसा हो रहा है, इट इज गोइंग आउट इन दिस वे, तो आप आराम से क्रैक कर सकते हो. और गेट प्लेसमेंट्स बोथ ऑफ थिंग्स ये दोनों अलग अलग नहीं होते. इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल से कोट करूंगा. मेरा एक जूनियर बैच था मेरे कॉलेज का. आई एम पास आउट फ्रॉम ट्रिपल आई टी भुवनेश्वर. तो वहां पे मेरे बैच में तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं आई थी बट मेरे जस्ट जूनियर बैच में माइक्रोसॉफ्ट आई थी. एट दैट टाइम द पर्सन हु वाज सिलेक्टेड वाज अ गेट एस्पिरेंट. वो गेट का एस्पिरेंट था, वो सेलेक्ट हुआ. हाँ वो कोडिंग में भी ठीक था, यूज टू कोड, डेटा स्ट्रक्चर था, एल्गोरिथम उसके अच्छे थे, सारी चीजें अच्छे से कर पाता था. बट कोड फोर्सेस या फिर आप लीड कोड पे आज के डेट में लीड कोड पे कर सकते हो. तो वो चीजें डेफिनेटली आपके लिए इजी हैं. आप उस टाइम में सबके लिए जो पार्टिसिपेट किए थे उस पर्टिकुलर एग्जाम में एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ था, दैट टू इन माइक्रोसॉफ्ट, वो जो गेट का प्रिपरेशन किया था. क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन वो पूछे गए थे जो कोई नहीं बता पाया थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से, कंपाइलर डिजाइन से. हम लोग इग्नोर कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में. मैं अगर क्वेश्चन पूछ दूं तो शायद हम इग्नोर कर देते हैं कि हमें क्या ही पता, हमें क्यों जानना है.
ठीक है, ऐसे नहीं होता सिस्टम, ऐसे नहीं चलते। ठीक है, मैं अभी बता दूंगा, वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो आप सिर्फ C++, जावा और पाइथन के स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, सो थिंग इज दिस कि आपको हर चीजों में नॉलेज होनी चाहिए, कैसे चीजें चलती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सिस्टम कैसे चलता है, COA कैसे होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, आर्किटेक्चर कैसा होता है, उसके बेसलाइन में क्या चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर आप पढ़ते हो कि आपके यहाँ जो OS है, आप लोग मोस्टली विंडोज यूज करते हो, कुछ लोग लिनक्स यूज करते होंगे, या फिर लिनक्स में भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, हम क्यों रॉ के लिनक्स पे जाएं, ठीक है, या फिर बाकी चीजों पे क्यों जाएं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि हाउ टू लाइक, अगर हम समझते नहीं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को तो हम चूज भी नहीं कर पाएंगे किधर जाना। ठीक है, तो समझने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझना। तो ऐसे सारी चीजें जो हम पूरे कोर्स में पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें कि आपको वो चीजें अच्छे से पढ़नी है ताकि वो समझ में आ जाए। एटलीस्ट नहीं कि वो गेट ही करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपके प्लेसमेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, स्पेशली फॉर बिग कंपनीज यू आर टारगेटिंग। जो आप लोग फाइन करते हो कि यार नहीं हमें फेसबुक, अमेजोन या फिर नेटफ्लिक्स इधर कहीं जाना है, तो उनके लिए तो यार जरूरत होती है। आप कभी, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो गीक्स फॉर गेट्स का एक सिंपल सा आर्टिकल है, सिस्टम डिजाइन ऑफ नेटफ्लिक्स, एक बार पढ़ के देखना, आपको लोड बैलेंसिंग और मल्टीपल चीजें वो समझ में आएंगी। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। ठीक है, सो यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। फर्स्ट थिंग, अगर आप जैसे कुछ क्वेश्चंस गेट के लिए आ रहे हैं, तो मैं सबसे पहले गेट को एड्रेस कर देता हूँ, एंड देन आई विल टेक अदर क्वेश्चन। गेट के लिए ठीक है, देर नहीं हुई, इवन इफ यू आर इन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ, सॉरी, सो मैं पहले गेट का डिस्कस कर लेता हूँ। आप जो लोग भी, आप थर्ड ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या कहीं भी फर्स्ट ईयर में भी हो, फोर्थ ईयर में भी हो, हाँ सॉरी, फाइनल ईयर सर, काफी लोग यहाँ पर। अच्छा बहुत सारे फाइनल ईयर के, ओके नो इश्यूज। तो फाइनल ईयर के लिए बता देता हूँ। तो फाइनल ईयर में हो तो सबसे फर्स्ट देखो, सबसे इजी तरीका होता है कि बुक्स तो पढ़ नहीं पाओगे, अभी टाइम नहीं, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल है। और 6-7 बुक्स होते हैं, मैंने खुद नहीं पढ़ी, पहली बात तो ये बता देता हूँ, मैंने खुद सारी किताबें नहीं पढ़ी जो गेट के लिए रिकमेंडेड होती है। उसके बाद भी रैंक आ जाती है आराम से। पहले तो एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। दूसरा समझना है, समझना जरूरी नहीं है कि बुक से ही है, हो सकता है कि आप वीडियो लेक्चर्स या अदर कोई कोर्सेज से भी समझ सकते हो। तो आप, अगर आपको लग रहा है कि आप बुक से कंफर्टेबल नहीं हो, नोट से कंफर्टेबल नहीं हो, तो कोई एक वीडियो लेक्चर्स फॉलो कर सकते हो। आप वीडियो लेक्चर कोई भी ले लो, उनको फॉलो करो। और ये ध्यान रखो, वैसे टाइम आ चुका है अभी की, इट्स लाइक ऑलरेडी सितंबर मंथ। ठीक है, तो अभी एग्जैक्टली तो अभी टेस्ट सीरीज शुरू करने का टाइम होता है कि अब टेस्ट सीरीज बनाना शुरू करो। बट ठीक है, अभी नहीं हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अभी के लिए जो टाइम बचा हो उसमें यही काम करो, जितने सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, स्पेशली डिजाइन सब्जेक्ट्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये 4-5 सब्जेक्ट जो हैं, इनको आप बहुत अच्छे से करो। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको एक्सपर्टीज चाहिए, ग्राफ थ्योरी में एक्सपर्टीज चाहिए, ये सब में। वो अगर आ भी गया बहुत टफ क्वेश्चन, तो आप बना भी नहीं पाओगे, वैसा भी होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। आपको 65 क्वेश्चन 3 आवर्स में करके देना, बना के देने, और सारे तो बन भी नहीं पाते। तो आपको ये ध्यान देना है, जो आपका पॉलिसी पोर्शन है वहां फोकस करो। दूसरा सेकंड थिंग ये है कि आप टेस्ट सीरीज ले लो और आप बनाओ, बिना सोचे बनाओ, जितने मार्क्स आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। आप लोग, यू कैन कनेक्ट टू मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, अगर आपको बहुत इश्यूज किसी चीज में हो रहे हैं तो मैं उनको पर्टिकुलरली सॉल्व कर दूंगा कि ये अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है किसी चीज। सर आपके आईडी? वो भेज देंगे, आई विल शेयर एट द लास्ट, और समवेयर आई विल शेयर, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो दिक्कत ये है कि अभी आपको वो पर्सनली ध्यान रखना है कि अगर पहले तो आप लोग एक कोशिश करो, सबसे फर्स्ट अगर गेट लिटरली देना है आपको, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो दैट आप पहले अपीयर हो टेस्ट में, आज के आज, कल जाके आप अपीयर हो जाओ, किसी एक टेस्ट पेपर को उठा लो, पिछले साल के या अगले साल के या किसी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस के, एंड देन यू जस्ट सॉल्व इट। ठीक है, एंड व्हेन यू सॉल्व इट कंप्लीटली, जस्ट नो कि कहाँ पे आप खड़े हो, पानी में कितना खड़े हो। ठीक है, हो सकता है ना यार कि मेरे 40 नंबर आ रहे हैं या 25 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं,
65 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 65 आ रहे हैं, मतलब बहुत बढ़ चुके हो, अब मैं क्रैक कर लूंगा। ठीक है, अब मेरे 30 आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत कम आ रहे हैं। तो आप ध्यान दें, I got less marks in GATE. Someone have a question. I'll just discuss one by one your questions. Okay, I am getting your questions from notification, but I'll discuss separately. Just I'll complete this topic and after that. So first you have to appear any test. I think this is the time. खत्म हो सेशन, अपियर हो जाओ। ये मत सोचो कि मैं प्रिपेयर है, कौन सा अभी जाके गेट, ये रिजल्ट थोड़े है आपका। दिस नॉट योर रिजल्ट ना, अभी तो दे रहे हो एग्जाम, अभी तो टेस्ट दे रहे हो। टेस्ट का मार्क्स आएगा तो पता चलेगा ना कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से नहीं बनते। तो क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, यू गेट टू नो दैट हाँ यहाँ प्रॉब्लम होती है मुझे। विच क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, वहां पे फोकस करोगे आप। आपको पता ही नहीं है, आप रैंडमली प्रिपेयर करोगे तो कहाँ निकलेगा, तो नहीं निकलने वाला। ठीक है, आपको आप बस टीओसी आपको अच्छा लग रहा है, आप टीओसी कर रहे हो। आपको कंपाइलर अच्छा लग रहा है, आप कंपाइलर कर रहे हो। किसी को ओएस अच्छा लग रहा है, ओएस कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ऐसे नहीं हो सकता है कुछ। तो फर्स्ट यू टेक अ टेस्ट, देखो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, देन यू डिसाइड कि क्या क्या फोकस करना है। डिजाइन सब्जेक्ट को पहले करो, क्योंकि उनसे क्या होता है कि अगर आप देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो या आप लेबोरियस हो, ये दोनों के मिक्स हो। तीन टाइप कैटेगरी कर सकते हैं, दो तो मेन है, उसका तीसरा कैटेगरी एक इंटेलिजेंट और लेबोरियस के मिक्स हो। ठीक है, लेबर से भी एग्जाम निकलता है, इंटेलिजेंट से भी एग्जाम निकलता है। मैं अपने आप को अभी भी एकदम बहुत गधा मान के लेबोरियस मानता हूँ, पढ़ के निकल जाएगा। ठीक है, कोई इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत चाहिए ऑब्वियसली, वो टेक्निकल एग्जाम में थोड़ी बहुत चाहिए हो, अदरवाइज तो हम आते ही नहीं बीटेक करने के लिए, हम अलग कोई डायमेंशन में जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग इंटेलिजेंट विद, वो हमारे अंदर बेसिक है। बट अगर हमको लग रहा है कि वी आर नॉट एबल टू सॉल्व लाइक बाकी लोग जैसे कर पाते, कोई उसको 2 मिनट में सॉल्व कर सकता है, आपको 5 मिनट लग जाते हैं, कोई इशू नहीं, दैट्स नॉट अ इशू। आप प्रैक्टिस करो 5 बार, ठीक है, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग ये ध्यान रखो। सेकंड पॉइंट इज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सबसे बड़े, इट्स लाइक आपके बाइबल है, आपके रामचरितमानस है वो, ठीक है, आपके कुरान है, वो जिस तरह से हो वो आपके वो है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको बना जाओ। हमारे स्ट्रीम में कंप्यूटर साइंस में तो फिर भी उसको 3-4 बार बनाते हैं लोग मिनिमम। बाकी स्ट्रीम्स में जाओगे, केमिकल, मैकेनिकल एंड अदर में, तो 10-10 बार लोग बनाते हैं। ठीक है, 10 टाइम्स सेम क्वेश्चन। आप नहीं करते हो क्योंकि आपको लगता है बोरिंग हो जाएगा कि एक बार बना लिया, अब क्यों बनाना। एग्जाम में वही क्वेश्चन कहीं फॉर्म करके आएगा, मिक्स होके आएगा, आपको लगेगा कि ये नया आ गया। नया सोच के क्या बनाओगे आप, टाइम कहाँ कि आप सोचोगे, सोचे हो तो एग्जाम नहीं निकलेगा, है ना। 65 क्वेश्चन थी और 3 आवर्स, उसमें में ही आपको निकालना है। तो दैट टाइम यू विल नॉट, कि आप खुद ही देखो, आप सब लोग जेई मेन दिए हो एग्जाम में, जेई मेन में क्या आप एग्जाम को सोच के जो लिखा है, ठीक है, उसके मार्क्स आए, बट वो क्या 360 ला सकता है? मतलब नहीं ला सकता है, 356 नहीं ला सकता है। वो ला सकता है जिसकी प्रैक्टिस उतनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस की एक वैल्यू, क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कैसे सॉल्व करना, ये आपको प्रैक्टिस डेवलप करना, दैट यू नीड टू डू इट। एंड राइट नाउ दिस इज द टाइम, थोड़ा टाइम में इंक्रीज करो आप, मिनिमम कंसिस्टेंसी 5 आवर्स रखनी पड़ेगी, दैट इज रूल। आप ऐसे रूल बना लो 5 आवर्स पढ़ने, कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, बगल से लैंडस्लाइड हो गया, तब भी पढ़ना, कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, दैट इज इट, आपको रखना है। कुछ चीजें अपन को रखनी पड़ती, कुछ ना करना है। पीवाई क्यू पूरे कंप्लीट करना है 3 से 4 बार। उसके अलावा आपको 5 से 6 घंटे डेली देने हैं उसके लिए। एंड उसके बाद आपको अभी स्टार्ट करना है फॉर दैट, कि लाइक आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर, मतलब अभी टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करना, और आगे कोर्स को कंप्लीट करना, कोर्स को बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना। ये 3 पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में रखना, ये इनके बाद ही आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। तो गेट में आप कर लोगे, मैं अपॉर्चुनिटीज बताता हूँ, बहुत अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप अच्छे से गेट कर लेते हो, लिटरली अगर सही से कर लेते हो, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, लाइक इन एवरी फील्ड। NIC is every year they are recruiting from computer science. SEBI is recruiting. BARC like every year, मैं जहाँ पे हूँ वहाँ हर साल आता ही है। ISRO ने अभी रिसेंटली निकाला था, पता नहीं कब। DRDO is recruiting. Okay. Coal India Limited is recruiting. So everyone is recruiting from computer. If you want to go in PSU field, lot of opportunities, but गेट सिलेबस नहीं होगा, गेट सिलेबस सही से कंप्लीट नहीं होगा, आप मान के चलो आप बिल्कुल ही रेस में नहीं। तो ये मान के चलो, सो वी शुड हैव अ फियर कि हमें गेट सिलेबस कंप्लीट करना ही, उतना कहीं से भी करना। और ये नहीं कि मतलब उसमें आपको पीएचडी करनी, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, स्पेशली गेट के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। अगर आपने पीवाईक्यू बहुत अच्छे से 3 या 4 साल कर लिया, तो आई रेयरली फाइंड अ पर्सन who has done the PYQ of GATE for 3-4 years, sorry, 3-4 times, and then he's not selected for ISRO.
वो जरूर प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है। इंटरव्यू में जो भी करे कॉन्सेप्चुअल थिंग है, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। तो फॉर बीआरसी वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन की इंटरव्यू कैसा होता है, व्हाट दे आस्क, बिकॉज वहां थोड़े से डेप्थ के क्वेश्चन पूछते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। तो इफ यू वांट टू हैव दिस थिंग कि हमें निकालना है गेट वाले चीजें, तो ये पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव हमें दिमाग में रखना होगा। तो फॉर गेट यू कैन आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ, आई विल जस्ट सी कि क्या क्या आप लोग क्वेश्चंस हैं। Sir, how many marks or rank is required to select it in PSUs like DRDO and ISRO? अंडर 100 you should assume you have to get under 100, but ठीक है अभी है। अभी for DRDO there are different type of things are there. DRDO they select suppose there are 100 seats, nearly 50 seats are coming for computer science, so in 50 they call it into 50 into 25, this ratio for prelims first round। they will take a descriptive test, like IAS में जैसा होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वैसे वो 600 मार्क्स के टेस्ट लेते हैं, एंड दैट 600 मार्क्स यू हैव टू राइट इट सब्जेक्टिव। अभी जैसे आप गेट में ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करके टिक करते हो, वहां सॉल्व करके दिखाना, जैसे आप एग्जाम का क्वेश्चन लिखते हो वैसे लिखना, एंड बेस्ड ऑन दैट मार्क्स यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन, स्पेशली फॉर डीआरडीओ, दिस इज डीआरडीओ पैटर्न। इन इसरो देयर इज नो गेट कंसिडरेशन, कोई गेट का कंसिडरेशन नहीं, वहां गेट का कोई मतलब नहीं। So you just appear for their test, and after that, if you'll get selected, you'll be called for interview. ये इसरो के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की दिक्कत है, दे हैव टू वेज। वन, यू कैन कम बाय टेस्ट। सेकंड वे इज दैट कि आप उनके गेट के स्कोर से आप अंडर 100 आते हो तो आपको इंटरव्यू कॉल डायरेक्ट आ जाएगा। सो देयर आर टू वेज, इधर यू विल कम बाय गेट वेज एंड सेकंड इज बाय एग्जाम। तो ये दो तरीके से आ सकते हो बार्क में। बाकी मोस्ट ऑफ द जो एग्जामिनेशन है दे जनरली टेक एवरीथिंग फ्रॉम गेट और दे टेक कंडक्ट अ टेस्ट, बट वो सारी चीजें जो सिलेबस जो होता है उनका गेट बेस्ड होता है। यू हैव टू कंप्लीट एनीवे गेट सिलेबस, आपको किसी भी कीमत पे किसी भी सिचुएशन में वो कंप्लीट करना है, तो दैट यू शुड डू। ये गेट को आप नहीं छोड़ सकते। इफ यू वांट टू बी अ कंप्यूटर साइंटिस्ट स्पेशली फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर, आपको गेट सिलेबस याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए पूरा पूरा, दैट हैज नो एक्सक्यूज। Sir, top 100 rank means more than 65 marks approximate. It varies. For my time when I was there, it was around 70. So 70 का around था उस time में. So around 70 you have to secure. But ठीक है, it's not like required always, because आज के डेट में क्या होता है, I'm just telling you guys, but because MTech is a great option also. Okay. So most of whatever, like I'm here, I generally every year I meet with the people who join BAS. So okay. So one question is how to make interview, select my resume for. Okay, I'll discuss one question I put up. I'll see. Okay. So क्या बता रहा था मैं कि स्पेशली जब आप एग्जाम देते हो और गेट के क्वेश्चन जो मतलब गेट के सिलेबस से जो भी चीजें होती हैं उनमें रैंक का वेरिएशन यही रहता है कि आप सेलेक्ट होने के बाद जस्ट मेमोराइज इट कि गेट के सिलेबस पे ही सारी चीजें सेलेक्ट होंगी, बट इन द सेंस कुछ एग्जामिनेशन है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आपको विथ गेट के वैल्यू दी जाएगी, कहीं पे नहीं दी जाएगी। जैसे आप पीएसयू में जाते हो, ओएनजीसी वगैरह में जाते हो, तो वहाँ पे वैल्यू दी जाती है। बाकी आज के डेट में आई हैव सीन द पर्सन, जैसे बीआरसी में 15 लोग सेलेक्ट होते हैं तो 7 लोग एमटेक करने चले जाते हैं, वो बीआरसी ज्वाइन नहीं करते हैं। जस्ट रिमेंबर दिस, बिकॉज अगर आप एमटेक करते हो यू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मेरे बैचमेट जो आईआईटी बैंगलोर से पास आउट हुए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, लॉट ऑफ मनी एंड गुड जॉब इन गुड कंपनीज लाइक टावर रिसर्च, कारगिल रिसर्च, गूगल, अमेजॉन। एमटेक इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगर बीटेक में गलती कर दी एमटेक को सुधार सकते हो। एमटेक में आईआईटी जाके चले जाओ, आप वहाँ पढ़ो एंड आफ्टर 2 years यू विल गेट अ ग्रेट जॉब। वहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली मेहनत तो छोड़ना नहीं है, वो आप भूल ही जाओ, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इजी कुछ भी नहीं है, बट हाँ वो एक बहुत ग्रेट प्लेटफॉर्म हो जाएगा अगर आपने मिस कर दिया है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बीटेक के टाइम में। तो गेट से आप, आई हैव सीन द पर्सन फ्रॉम दोज कॉलेज, आप नाम भी नहीं जानते हो, वहां से निकल के वो लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद में गए हैं एंड आफ्टर 2 years दे गॉट जॉब इन एप्पल normally। well, this is the thing, so you have multiple options, so don't worry, so you just try working for that. So I'll just take some questions, whatever, there are a lot of questions. I'll just go in stack manner, sorry, queue, not stack. I am second year student, कैसे how can I start my education for now? एक अकेला का मैसेज है, so definitely you should start. Second year is a great time to start. यहाँ से आप दोनों मैनेज कर सकते हो। वन इज चिरासा जैन, सर कैन यू प्लीज रिकमेंड यूट्यूब चैनल फॉर प्रिपरेशन? आई कैन, बट यूट्यूब में सारे हैं नहीं, सारे लोग कंप्लीटली नहीं पढ़ाते हैं आपको, ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस एजुकेशन, तो सारे तो मिलते नहीं आपको वहाँ पे।
So definitely you need to look for either some coachings or something related to कि आप कुछ कहीं से पढ़ो, थोड़ा बहुत बुक से पढ़ो, नोट्स से पढ़ो. ऐसे नोट्स बहुत सारे फ्री अवेलेबल है. एक अप्लाइड कोर्स का ही नोट्स बहुत सारे अवेलेबल है एंड दे आर वेरी गुड नोट्स. अप्लाइड रूट्स का कोर्स है. दे हैव प्रोवाइडेड द फ्री नोट्स ऑन देयर वेबसाइट. यू कैन यूज इट. वो बहुत अच्छा है, लिटरली बहुत अच्छा. आप पढ़ सकते हो. One thing is that कि sir, if I got less marks in GATE, then it will affect my placement. No, not at all. कोई मतलब नहीं. GATE preparation has no relations with your placements, but हाँ knowledge काम आती है. आई फील गो फॉर देखो आप 10 लाख तक की कंपनी तक जाओगे ना तो वहां ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. और 10 लाख की कंपनीज में मोस्टली प्रोग्रामर हो, आपको समझ में आती है, देन इट विल वर्क फॉर यू एंड विल गेट सेलेक्टेड. बट अगर आपको सपोज माइक्रोसॉफ्ट आई हैव सीन दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ओएस. बहुत डीप नहीं पूछते, नॉट लाइक बीएआरसी. इन बीएआरसी यू विल गेट वेरी हार्ड क्वेश्चन फ्रॉम गेट. हार्ड नहीं, बेसिक आते हैं. सो इफ यू डोंट हैव द exact concept of the OS, then you will fail here, but not at that point. So there they require that you have some idea about OS. So they require this. Or do you have some idea of computer organization or architecture? So there, for that purpose, you need. If you want to get in the big companies, really like Microsoft, Google, or anything, this they require this thing. And after that, one question is that CS system marks actually required. Okay, so I have already solved it. How to make interview select my resume for job for data analyst role. Yeah, you guys are right now. One thing I just also make sure for you. You are right now going through much of hype of machine learning, AI, computer vision, data analysis, data science, big data, whatever. Yeah, basics पहले होने चाहिए. Okay, you can do it. I'm not doubting that you can't do, but आपको basics होने चाहिए. Like when you are going to write some pipeline, when you write because data science जब भी शुरू होता है ना, सबसे पहले data pipeline बनता है, because data कहीं और generate हो रहा है. See, I'm giving example of Amazon. डेटा आपके कंटिन्यूअस जनरेट हो रहा है, सेकंड्स में आप विजिट कर रहे हो. वो सारे डेटा पहले इंजेक्ट होने चाहिए. एक इलास्टिक करके पाइपलाइन होती है, एएल के स्टैक, इलास्टिक सर्च की बाना, लॉग स्टैक, इनकी पाइपलाइन होती है. वहां पे पूरे डेटा लॉग होते हैं. लॉग होने के बाद उनकी एनालिसिस होती है. एनालिसिस के लिए फिर सॉफ्टवेयर लिखना पड़ता है. फिर एनालिसिस के बाद आपको डैशबोर्ड में दिखाना होता है कि दीज आर द थिंग्स वी हैव टू फोकस. यहाँ पे ज्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं. फॉर दैट प्रोग्रामर्स हेल्प, उनके लिए हमें प्रोग्रामर्स की जरूरत पड़ती है. तो फॉर दैट थिंग आपकी बेसिक तो वही है. आप अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बिल्कुल नहीं पढ़े हो, आप सीधे बिग डेटा में जंप कर रहे हो, अब मे भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, नॉट डाउटिंग कि कोई हो सकता है, बट आई बिलीव, मेरा ये बिलीव है पर्टिकुलरली कि वी शुड गो बाय दिस रोड. हमें एटलीस्ट बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छे से आना चाहिए, समझ में आना चाहिए. एटलीस्ट योर बेसिक पार्ट जो अभी कोर्स में मेंशन्ड है. अब मैं डाइस्ट्रा पूछूं, प्रिम्स पूछूं, क्रिस्टल्स एल्गोरिथम पूछूं, ये सब आपको बिल्कुल आना चाहिए. अगर मैं हीप की बात करूं, यू शुड डिजाइन हीप. आपको हीप तुरंत आप बना सको, बिल्ड हीप के एल्गोरिथम लिख सको. अगर इतना आता है तभी आप उधर जाओ. तब आप डिसाइड करो कि आपको किधर जाना है. इधर आपको मशीन लर्निंग जाना है या फिर डेटा साइंस जाना है, कंप्यूटर विजन जाना है. क्योंकि सबसे पहले डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पूछेंगे. उसके बाद डेफिनेटली वो थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पूछेंगे आपसे, ऐसे छोड़ेंगे नहीं. तो फॉर दैट दिस इज अ थिंग, दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड. तो सेकंड, अदरवाइज द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर इसरो इंटरव्यू. ओके, अभी इसरो का जनरली यार रैपिड फायर होता है. मैंने जो दिया, आई गॉट सेलेक्टेड in that, but थोड़ा रैपिड फायर टाइप होता है, वेरी फास्ट दे आस्क द क्वेश्चन. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल थोड़ा सा आप लोगों को डराने के लिए, पर डरना मत आप लोग, खुश रहना. So just like if I'll start any topic, if you someone will just comment any topic, I'll just give you a glimpse of how they ask the question. Please comment anyone. क्लासरूम लेक्चर नहीं है, आप कमेंट कर सकते हो. Programming languages, okay, nice. So they will ask, just I'm going through this topics, programming language. So I'll just start with object-oriented programming language. What are object-oriented programming language? You will see C, C++. C is not object-oriented programming. C++, Java, Python is also there. What is the difference between OOPS concept and function-oriented? The second question they will ask. If you'll answer this, then they will ask, okay, function-oriented and this object, what is the advantage of OOPS concept? Why we use it? Okay. If you'll answer this question, again they will go to, okay, so you told that C++, but we write again without class and object also we write the program. So why this flexibility has been given? Okay, so this type of question, they will thread. There is a thread. If you'll answer one, they will make a thread and this will be fast and furious. Okay. तुरंत तुरंत क्वेश्चन आता जाएगा. 1, 2, 3, 4. फायरवॉल पूछा, नेटवर्क पूछा, 7 लेयर ऑफ नेटवर्क कौन से हैं, व्हाट आर द 7 लेयर ऑफ स्टैक्स, ओएसआई स्टैक्स.
then they'll shift to firewall, then they'll shift to digital signature. Okay, suddenly, and you have to answer it fast. And it is hardly 20 minutes interview. In ISRO, there is hardly 20 minutes interview. For me and before me, this was the pattern. Right now, what they are going to do, I don't know. But this should be a pattern. Okay. Again, this will not be like BRC. BRC, mein, they will dig it. Okay. Just example, if you are saying programming languages, then I'll ask you why we should go for recorded or live classes. Okay. Anyone will work for you. I generally recommend for recorded classes because you guys are having classes also in colleges. So according to your comfort, watch the videos. They don't be for live classes. हाँ, किसी को ऐसा है कि मेरे को मोटिवेशन ही लाइव क्लास में मिलता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट आई जनरली प्रेफर रिकॉर्डेड क्लासेस बिकॉज दिस माई कन्वीनियंस. ओके, व्हेनेवर आई वांट, अगर मैं रात को 3 बजे देखना चाहता हूँ तो आई शुड वॉच. दैट इज ओके. सो जस्ट गो फॉर लाइव क्लासेस. इफ यू डोंट, मतलब आप बिल्कुल भी रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं पढ़ सकते हो तब आप जाओ लाइव क्लासेस के लिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस आर वेरी फाइन, आप कर सकते हो. ओके, सो इसरो इंटरव्यू, जो आपका क्वेश्चन है आयुष, यू कैन आस्क मी अदरवाइज आल्सो व्हेनेवर यू हैव इंटरव्यूज, यू कैन जस्ट कांटेक्ट मी, आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट इट, बट द बेसिक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू. ओके, सो गेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्या करूं? ओके ब्रो, दिस अब सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट यू हैव टू एनालाइज कि क्यों नहीं हो रहा है. कॉन्सेप्ट नहीं पता है. 3 थिंग्स हम लोग 3 वजह से. कैन यू मेंशन द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर गेट? ओके, बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर गेट, मेड ही अभी पता नहीं कैसा चल रहा है, बट आई यूज आई व्हाट आई टुक एट दैट टाइम गेट के लिए मेड ही लिया था मैंने, और एक अप्लाइड एआई कोर्स का लिया था. अप्लाइड एआई कोर्स हैज अ ग्रेट टेस्ट सीरीज एट दैट टाइम. आई डोंट नो राइट नाउ, बट दे हैड ग्रेट. अभी अब गो क्लासेस चलते हैं, गो क्लासेस के ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे आर ग्रेट. एंड सेकंड वन, यू कैन पिक अप्लाइड एआई कोर्स, और दिस टू यू कैन टेक. दो तो आप ले लो, दो रखने से अच्छा रहता है. और आप एक चीज ध्यान रखो, बहुत सारे फ्री टेस्ट आते हैं, कुछ ऑल इंडिया टेस्ट कराते हैं वो लोग, तो फ्री टेस्ट आप लेते रहो. बीच में जिस दिन भी आ रहा ले लो. देखो, उसके पैसे नहीं लग रहे, उससे कोई डिमोटिवेट नहीं होना, वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट भी नहीं होता, ये भी जान लो. यहाँ पे आप रैंक 1 लाओगे ना, वहां नहीं आएगा. ऐसा जरूरी नहीं है यहाँ पे रैंक 50 ला रहे हो वहां 1 आ जाएगा. सो ये वेरिएशन रहता है, इसके लिए परेशान नहीं होना. और जैसे बूस्ट सेक्रेट ऑफ पावर एनर्जी का गाइड है ना, कि जितनी गलतियां करनी है प्रैक्टिस में कर लो. ठीक है, ये प्रैक्टिस है. यहाँ जितनी गलतियां करने कर लो, वहां नहीं मौका मिलेगा. वो 3 आवर्स में आपको सही करना है, तो इसलिए उसको परेशान नहीं. यहाँ जितनी गलतियां कर सकते हो कर लो, गलतियों से सीखना है. आपको ये भी ध्यान रखना है, हर एक टेस्ट सीरीज में क्या गलतियां की हो इसको आपको सीखना है. एनालाइज करो उसको बैठ के 1 घंटे कि क्या गलती की मैंने, नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए. जैसे मैं बहुत गलती करता था, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट टिक करना है, करेक्ट टिक करना है, वहां गलती करता था. ठीक है, कई बार क्वेश्चन बहुत तेज पढ़ लिया. एक कोरा में मैंने स्पेशली इसके लिखा है 4-5 मिस्टेक जो हम बहुत कॉमनली करते हैं. इजी क्वेश्चन देखा नहीं कि हमें लगता है कि अब तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत और गलती कर देते हैं. अब इजी क्वेश्चन गलती करने का मतलब हम रैंक से पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे. इजी क्वेश्चन तो गलत होने ही नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन पढ़ने में गलती होगी. ये सब सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, विद प्रैक्टिस इट विल बी अवॉइडेड. पहली बार गलती हुआ ठीक है, मान लो, सिल नहीं करना, लिख लो कहीं पे. नेक्स्ट टाइम अगेन आपको ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक फिर से नहीं करना. नेक्स्ट सीरीज से पहले उसको रिवाइज कर लो, जहाँ पे आपने लिख के रखा है कि ये गलती नहीं करनी, वो गलतियां नहीं करनी, तो अगले टेस्ट सीरीज में उसको इम्प्लीमेंट करो. फिर वहां जो गलतियां फिर लिख लो, ये नहीं करनी, और रोज उसको देखते रहो, ये नहीं करनी. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इनकरेक्ट है करेक्ट है उसको देख के रहा है, उसके बाद आंसर को लिखना है. तो दिस इज थिंग यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इजी क्वेश्चन देके घबराने, बहुत तेज फास्ट नहीं होना है, थोड़ा संभल के आंसर करना है, क्योंकि ये गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक है, रफ जो लिखना है, जो रफ पेपर मिलता है वहां पे उसको बारे में ध्यान देने के. रफ पेपर में कुछ भी मत घसीट दो आप, क्योंकि हो सकता है चेक करने के लिए कभी आना पड़ेगा, यार इस क्वेश्चन के लिए क्या ले. तो क्वेश्चन नंबर के साथ अच्छे से रफ बनाओ, अच्छे से मतलब एकदम वो हैंड राइटिंग नहीं बैठा दो एकदम कर्सिव में लिखेंगे कि यार एकदम शानदार रफ देख के ही नंबर मिल जाए मुझे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. बट आप ऐसे लिखो कि आप नेक्स्ट टाइम आगे कम से कम उसको रेफर कर सको, अगर कुछ डाउट हुआ तो वो चीज ध्यान देना. तो दैट थिंग यू शुड डू. उसके बाद सम क्वेश्चंस आई एम टेकिंग हियर. बेस्ट टेस्ट सीरीज के लिए मैंने बता दिया जो मैंने लिया था. राइट नाउ आल्सो आई रिकमेंडेड कि 2 आप ले सकते हो, ये 2 अच्छे हैं टेस्ट सीरीज. और गो क्लासेस का getting good reviews from people. Again, I'm not promoting, I'm not from Go classes, but whatever I got reviews from the people, I'm just telling you. What is like taking is like 2 years experience on a company, then switching or doing masters for 2 years and then getting in. Okay, 2 साल आपने किया है. बहुत लोग हैं निहाल, like you, many people are there जिन्होंने 2 साल काम किया है. My one of the friend, my batchmate from BARC, she did work in Infosys for 2 years, and after that she cracked GATE and then she joined BARC. There are some people who worked 2 years in companies and after that they did the M.Tech and after that they are working in a great company. So you can do it definitely. अगर आपको लगता है कि you're not able to switch,
फर्स्ट इफ यू आर इन कंपनी ट्राई टू डायरेक्टली स्विच इट। ठीक है, डायरेक्टली स्विच हो जाता है तो बेटर है, एमटेक करने की जरूरत नहीं पड़े। तो 2 साल आप पढ़ोगे फिर से आपको कोई मन नहीं करेगा, इफ यू आर वर्किंग एंड देन कोई बोले पढ़ लो वापस, तो वहां पे आपको भी लगेगा कि नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो बेटर है वहीं स्विच कर लो, तो वो सबसे अच्छा है। नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली गो फॉर एमटेक। ठीक है, एमटेक करो आप अच्छे से पढ़ के, देन यू विल गेट अ गुड जॉब डेफिनेटली, इट विल बी फ्रॉम एनी ऑफ द 7 IITs या फिर एनआईटी, सम एनआईटी ऑल्सो, और आईएससी तो है ही। इन सब से कहीं से रहोगे तो बहुत अच्छी कंपनी आती है और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यू कैन डेफिनेटली यू गेट अ गुड कंपनी। तो ऑप्शन आपके पास पूरा पूरा रहेगा। एक क्वेश्चन है लास्ट की ओर आयुष का कि प्लीज सीजीपीए, अगर सीजीपीए प्लेसमेंट में उतना रोल प्ले नहीं करता। इट्स नॉट लाइक कि सीजीपीए पे दे रिजेक्ट यू, they have very minimum 6.5 limit for, I think nearly most of the company 6.5 और 7 का ही लिमिट रखती है। बट ऑब्वियसली फॉर इंटरव्यूअर्स माइंड इफ यू से अगर सीजीपीए है तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं है तो भी कोई बुरी बात है ना। इफ यू आर एबल टू डू दैट इंटरव्यू, अगर आप, मैंने टेस्ट क्यों रखा, अगर सीजीपीए पे ही लेना होता आपको तो व्हाई हैव कंडक्टेड टेस्ट। मैं सीजीपीए मानता, जो टॉपर्स उनको दे दो, मैं कंपनी में ले जाऊंगा। दे आर कंडक्टिंग टेस्ट टू कि एग्जैक्टली आपके पास नॉलेज है कि नहीं। सो सीजीपीए का बस इतना है, आप क्वालिफाई भी करने लायक हो कि नहीं, ऐसा बेसिक चेक करने के लिए वो लोग रखते हैं सीजीपीए। बाकी उनका कोई स्पेशल रोल नहीं है। हाँ, थोड़ा इंटरव्यू में इम्पैक्ट होता है ऑब्वियसली। एक आप दो सिलेक्ट हुए हो, आप और आपका दोस्त, उसका 9.8 है, आप 6.5 पे हो, डेफिनेटली थोड़ा तो मैं इंटरव्यूअर हूँ या कोई भी इंटरव्यूअर, तो उसके दिमाग में आएगा कि ये थोड़ा लग रहा है कि मेहनत किया हो, तो थोड़ा इम्पैक्ट डालते हैं इंटरव्यू में या इन सब चीजों पे। बाकी इन जनरल उससे ऐसा नहीं रिजेक्शन होता है, उससे सिलेक्शन को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो बी गुड फॉर दैट। Which subjects is good to start for preparing for GATE? Can you tell the order or sequence of subjects? For me, bro, Adarsh, for me, it was like 4 subjects I generally preferred: operating system, computer organization and architecture, database management system, these three, and computer networks. तो 4 subjects से मैं ये start करता था always. I like design subjects, but it varies. Some people like mathematics, so mathematics से start करते हैं discrete, then they go for engineering mathematics, then they go for digital logic, then they go for data structure and algorithm. ठीक है, तो they go in that order. उसके हिसाब में start करते हैं. I generally start with like design subjects. These are the design subjects: computer networks, operating system, computer organization and architecture, and database management system. इनसे ही मैं start करता हूँ generally. So I prefer them. बट अगेन इट इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इनको मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि दे आर डिजाइनिंग थिंग्स। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप सही से कॉन्सेप्टली क्लियर हो, मैथमेटिक्स की स्किल थोड़ी खराब भी है आपकी, तो यू कैन परफॉर्म गुड। आपने उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आपके मार्क्स अच्छे हैं। तो दैट वे आई फील कि आप ये अच्छा रहता है। सर, आफ्टर सर्टेन टाइम मार्क्स आर स्टक इन अ पर्टिकुलर रेंज, हाउ टू इंक्रीज द मार्क्स फ्रॉम दैट रेंज? यार ये होता है, बिल्कुल स्टक हो जाता है। स्टक किस रेंज पे ये डिपेंड करता है। अगर आप 65 to 70 के बीच स्टक हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप गलतियां सुधारो। फिर पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है कि मतलब आपको कॉन्सेप्चुअली लैक नहीं हो रहा है, अब जो हो रहा है आपकी मिस्टेक की वजह से हो रहा है। तो जैसे सिली करते हो या इसके वजह से हो रहा है। अगर आप उससे पीछे हो, 65 से नीचे के जोन में कहीं भी हो, तो कॉन्सेप्चुअली आप वीक हो। फिर आपको सब्जेक्ट को सही समझने की जरूरत है, आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर वापस थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो थर्ड लेयर इज थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट लेयर यू स्टार्ट विद डीबगिंग योर क्वेश्चंस की कहाँ गलती हो रही, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आते, कहाँ गलती कर रहा हूँ। ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व नहीं हो पा रहे, पीडीएस सॉल्व नहीं हो पा रहे, या फिर नॉर्मल डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा से नहीं सॉल्व हो पा रहे, किससे नहीं सॉल्व हो पा रहे, या फिर ओएस में कौन से पार्ट नहीं सॉल्व हो पा रहे, पेजिंग एल्गोरिथम्स नहीं सॉल्व पा रहे, वर्चुअल मेमोरी कौन सा पार्ट, उसको ध्यान देंगे। तो आपको वो डिबग करना पड़ा, पूरा नहीं पढ़ सकते हो। डोंट एक्ट लाइक कि मुझे अच्छा ओएस में कम नंबर आ रहा है तो आई विल जस्ट रीड इंटायर ओएस। सो इंटायर ओएस में जो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है वो तो पढ़ी, वो तो आता ही है आपको। जो वीक है उसका आपने को थोड़ा सा ही टाइम दिया, इससे बेटर ये है कि वीक को स्ट्रांग करो थोड़ा सा। आपका स्ट्रांग क्वेश्चन तो ऑलरेडी है। सो मतलब इतना ऐसे थोड़ा इंटेलिजेंटली टाइम डिवाइड करो आप उसको। हमेशा ये नहीं कि हम एकदम बुक उठाएंगे और फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड चैप्टर तक पूरा पढ़ेंगे। जनरली आप जानते ही हो, आप पहला चैप्टर उठाते हो, उनको अच्छे से पढ़ते हो, लास्ट लास्ट तक ज्यादा जाते हो, आपकी स्पीड तेज हो जाती है और लास्ट चैप्टर हमेशा छूटते हैं और अच्छे से फिर भी नहीं होते। कई बार तो मैं लास्ट चैप्टर पे पढ़ना शुरू करता हूँ इसी वजह से, क्योंकि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। 10 चैप्टर है तो लास्ट चैप्टर को मौका मिलना चाहिए, देखते रहते हैं। यू शुड बी लाइक बैलेंस, क्योंकि कब कहाँ से क्वेश्चन हो जाए आपको थोड़ा पता। You should remember that. So, for me, if you ask my preference, I'll just go with the design subject first, then a mathematics. That is one question, sir. I am should be more prior to placements or GATE. I am giving GATE in CSE and currently electronics. Okay, you are in EC and you are doing GATE for CSE. Placements है अगर अच्छा
हो, ठीक है, मतलब जैसे अगर आप सही में यू आर गेटिंग मोर देन 8 lakhs or 10 lakhs type of things, then it's great, you can go for placement. Otherwise I should if you are literally practice enough with the gate, गेट अच्छा है, क्योंकि गेट में आपको तो गारंटेड है कि अगर आप सही से कर पाते हो तो you will get an ISC. There is a program called computational and data science. If you'll go there, they have like mechanical भी आते हैं वहाँ पे, electronics भी आते हैं, computer science भी आते हैं, so they all go in the same syllabus. और वहां से निकलने के बाद लाइक इट वाज वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट प्रोग्राम इन आईआईएससी. आईआईएससी का वो एक टाइम का टॉप प्रोग्राम था. अभी एआई बनने वाला है कुछ दिन में, वहां दे हैव स्टार्टेड एमटेक एआई, बट इट वाज देयर. सो दैट वाज द थिंग. सो आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि प्लेसमेंट से यहाँ कुछ हो पा रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट इसलिए बेटर है क्योंकि अभी आपको जॉब मिल जाएगी, आपको 2 साल और नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस यही है डिफरेंस प्लेसमेंट का. 2 साल आप डिले नहीं करोगे चीजों को, यहाँ से ही आप प्लेस हो जाओगे, एंड आफ्टर दैट इफ यू ट्राई हार्ड वर्क इन द कंपनी, स्किल्स गेन करोगे तो वहां से जंप लोगे. दैट इज इक्विवेलेंट टू डूइंग एमटेक. ठीक है, एमटेक में यही होता है, 2 साल और पढ़ना है. तो अगर आपको लग रहा है कौन से वे में जाना है, वे तो आपको चूज करना पड़ेगा कि विच वे आई हैव टू. ओके, whether I have to struggle in the company and then I'll jump it, or whether I'll go in a college IIT Bombay and then I'll study for 2 years and after that I'll go to Google. ये आपको डिसाइड करना है which way. दोनों एफर्ट है, but the directions you will decide कि तुम आपको कौन सा पसंद है. So that is it. Can you some teachers name that we should buy their classes? Oh, okay. This information I will not share here, but if you guys have some doubt, you can literally about classes. So मैं थोड़ी बहुत recommendation दे दूंगा, ऐसा ना लगे कि मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ. But there are some classes, Go classes are there. There is applied AI courses there. There is Vision Gate classes. There 3 are very famous right now, and 3 are the option. और कुछ भी ऐसा नहीं है. See, if you see ना, कोई सब्जेक्ट किसी का बेटर है. I think even if you initially जब मैं था तो रविंद्र बाबू रघुला का चलता था. You must have heard about this name. Okay, so उनका चलता था. तो उनमें क्या था कि सारे सब्जेक्ट वही पढ़ाते थे. तो some subjects are good, some subjects are कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है. तो okay, whatever he thought. तो वो तो आपको डिफरेंशिएटर मिलेगा ही. बट लेकिन ठीक है, एक बार आपको कोई पढ़ा देगा, वो चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप कर लोगे, ऐसा कोई इशू नहीं. ये 3 फेमस है, विजन गेट है और गो क्लासेस है एंड अप्लाइड एआई कोर्स है. 3 आर फेमस. तो यू कैन बाय एनी ऑफ देम एंड यू कैन गो. अगर आपको लग रहा है कि आपको सच में गेट करना है तो यू शुड बाय इट. ओके, अदरवाइज बुक से पढ़ सकते हो तो ठीक है. नोट्स भी ऑप्शन है. इन तीनों में से आपको डिसाइड करने का आप कैसे जाते हैं. Okay, sir, is it possible to go? A question is also, is it possible to go with books for? Yeah, it is possible. It is possible. Just you need patience. Patience चाहिए होगा बस. बहुत अच्छे से पॉसिबल है. और थोड़ा सा लेकिन वहां पे ध्यान ये देना है कि आप बहुत ज्यादा बुक में घुस नहीं गए. बुक से स्टार्ट करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, बुक्स में बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो गेट ओरिएंटेड नहीं लिखी गई है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखी गई है. देयर आर 2 थिंग्स, गेट ओरिएंटेड सिलेबस, सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिलेबस. अब टीओसी है तो है, वहां पे बहुत चीजें लिखी गई है ना. तो उसमें आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा नहीं करना है, कौन से ध्यान देना है, कौन सा नहीं ध्यान देना है, ये कोचिंग तो बता देता है, आपको नहीं पता चलता. आप उसी क्वेश्चन में फंसे रहोगे जो आने नहीं वाला कभी एग्जाम. सी देयर आर 2 थिंग्स. वन यू हैव टू, वन यू आर टारगेटिंग फॉर पीएचडी, वन यू आर टारगेटिंग फॉर एग्जाम. तो ध्यान देना. बट नॉलेज भी टाइम फ्रेम है ना. वी हैव अ लिमिटेड टाइम फ्रेम. तो टाइम के अंदर एक लिमिटेड चीजें हो सकती है. यू कांट मेक अ ब्रिज, ठीक है, इन जस्ट 1 month. इट टेक्स टाइम. तो 1 month में तो छोटी सी बनेगी, कुछ रोड ही बन पाएगी. ठीक है, तो वही ध्यान देना. टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट. तो दैट मेक्स आवर प्रिपरेशन कि हमें स्ट्रेटेजी कैसे करनी. दैट वाई स्ट्रेटेजी कम. आपको स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है, तो कैसे करना है, क्योंकि अगर बस टाइम फ्रेम लिमिटेड है. इनफाइनाइट टाइम तो है नहीं. ऐसा थोड़े घर पे बोल के बैठे बनी 5 years में गेट का प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद आके मैं देखूंगा क्या करना. नहीं है, टाइम नहीं उतना. ऑब्वियसली वी हैव हार्डली सम ईयर. ओके, मतलब देखा जाए तो 1 ही साल है. अगर लास्ट ईयर में हम भी चाहते हैं कि लास्ट ईयर कंप्लीट हो तो जॉब प्लेसमेंट हो, दैट वी वांट. उसके लिए हमें ध्यान देना है कि कैसे करें, किस तरीके से, क्या पढ़ें, क्या छोड़ें. ठीक है. और एक बार मार्क्स टेस्ट, एक तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स से नहीं घबराना है. टेस्ट सीरीज में अगर आ गया, मेरे को 40-50 नंबर आ गए तो लग रहा है कि अब तो कुछ होने नहीं वाला, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो उसको देखो आप गलती क्या कर रहे हो. टेस्ट सीरीज के मार्क्स हार्डली रिफ्लेक्ट करते. मैं किसी में डीजी के टेस्ट सीरीज में कभी मेरा रैंक 150 के ऊपर नहीं आया. इट वाज बियॉन्ड 150 से ज्यादा ही था. तो वैसा कुछ नहीं होता है कि आप 150 ला रहे हो या 100 ला रहे हो तभी आप वहां 100 लाओ. ठीक है, द बोथ हैव अ डिफरेंट पैटर्न यार. तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी आपको प्रैक्टिस करेंगे. ओके, कैन यू रिपीट द नेम ऑफ बुक्स कंपनी. बुक्स कंपनी यार, बुक्स के लिए तो आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, बट मुझे जो समझ में आ रहा है मैं बता देता हूँ.
कि जो बुक्स आपको पढ़ने हैं तो कुछ चीजें हैं, मैं I'll put a list, I'll try to put just contact somewhere, otherwise I'll share with Amit and they will share with you a book list whatever I prefer, जो books मैं prefer करता हूँ, so don't worry about it. So okay, best books, okay, got it. See, best books for gate preparation is this. Like I'm just telling some names. Okay. For like computer networks, I have studied Kuros Ross, Top Down Approach. That is one book is there. Kuros Ross is the writer, and Computer Networks, a Top Down Approach is the book name. That is a very great book I found. It was nice. Second, for computer organization architecture, there is some book called Patterson's book. So for computer organization, that is a great book. For again operating system, no, that's one Bible is there. That is Galvin's book of operating system. That is a great book. For TOC. There is a Peter Lynch was the writer. He wrote a great book for that. So that is another option for TOC. For digital logic, don't read any book. Okay, don't go for any book. I just recommend you. There is one video lecture on NASO Academy on YouTube, free of cost. Just watch that and solve the questions. You'll get every concept. That is more than enough. So this is for digital logic. In the same way, for database management system, there is a book, but there is a very heavy book. So for that, I'll recommend you don't go for the book. You can use some notes because books तो बहुत बड़ा है, like 400 500 pages. So that much if you can read, then okay, I'll share the book name. But otherwise, I'll just prefer you get for DBMS. You should go for the notes. Notes are available on applied course site. There is a link. You can go and download every subject's notes. So you can whatever you have done earlier, so you can revise also and you can read also. So easily they are explained. So you can do it. So any more questions you guys can ask? Because it's like 44 minutes. I'm continuously speaking. So आप लोग और कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो. Any more questions, guys? I think moderator should interfere in between and should tell me that how to maintain consistency in DSA problem solving. Okay, nice question, bro. The question is how to maintain consistency in DSA problem solving. First, you should limit your time for DSA problem solving. First, consistency is this. If you're planning that, that questions for Amazon and see, there are three type of questions generally come in examination, especially for the big companies. There is one easy, medium, and tough. So for medium question, they hardly give you 20 minutes. They hardly give for the online coding things. So there you have to remember that in 20 question you have to write the code and explain also whatever you have written. Speed is required there. आपको speed में code करना पड़ेगा. For that, I generally recommend nowadays lead code पे practice करना. So you do lead code का premium कर सकते हो तो premium ले लो, free वाला भी है उसका. Okay, gigs for gigs भी है. So every day just fix your time. 20 minutes में ही करके देखना किसी भी तरीके से. So you try it and try company's question. They have company specific question. For Amazon they have question. For Microsoft they have question. So you have to go through their questions and then try to solve them. एक और चीज, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपन को लगता है कि अब वापस इस क्वेश्चन की तरफ तो मुड़ के नहीं देखना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है. उस क्वेश्चन की तरफ वापस मुड़ के देखना है कि क्या हुआ था, क्या क्वेश्चन था, बिकॉज उसी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले. तो अगर आप उस क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करते हो, यू आर गोइंग टू डू अ बिग मिस्टेक. ओके, बिकॉज सपोज आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल. ओके, मैथमेटिक्स में व्हेन वी हैव स्टडीड डेरिवेटिव्स, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x. So ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे कितने क्वेश्चन पढ़ते हो? बहुत सारे, 10 20 50 60, बहुत सारे क्वेश्चन इसका. इन द सेम वे एक कोडिंग क्वेश्चन करने के बाद उसमें बेस कितने क्वेश्चन आते हैं? बहुत सारे. तो आपने एक पढ़ के उसको रिवीजन छोड़ दिया, आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा फिर से दिमाग लगाऊंगा. 20 मिनट्स में कितना दिमाग लगाओगे? पॉसिबल है, कोई इंटेलिजेंट बहुत हाईली इंटेलिजेंट है तो पॉसिबल है, बट बिना प्रिपरेशन 20 मिनट्स में फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल. मैं प्रिपेयर्ड नहीं रहूंगा तो मैं नहीं लिख पाऊंगा 20 मिनट. आई कैन डू इट अगेन, 1 घंटे में कर दूंगा, सॉल्व कर लूंगा, सबमिट कर दूंगा, बट 1 घंटे तो नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना. 20 मिनट में लोग कर रहे हैं, आई नीड टू डू इन 20 मिनट्स. कंसिस्टेंसी इज दिस थिंग. एवरी डे यू सॉल्व, you fix your time, and every day I'll sit for 2 hours.
Your 1.5 hours. If you are going for placement, then definitely you should sit for 2 and 2.5 hours. बैठ के करना ही कुछ भी हो जाए. I have to solve first in time limit. Okay, and then you have to evaluate it कहाँ गलती. And before that also, अगर competitive coding या placements में अगर अच्छे selection करने हैं तो आपको there are some lectures also Scalar Academy is there. वहाँ पे तो फीस भी नहीं लगती. वहाँ पे अगर आप उनकी कोडिंग इंटरव्यू पास करते हो तो आपको ऑफरेंट फी नहीं देनी पड़ती. वो आपको पढ़ाते हैं, जॉब लग जाएगी तब आपको उनके पैसे देने. तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो आप. एंड देन यू कैन डेफिनेटली यू कैन हैव वहाँ सीख है एंड देन यू सेलेक्ट. आप सेलेक्ट हो जाओगे. और भी बहुत सारे कोडिंग निंजास हैं. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अल्मा मैटर है. बहुत सारे हैं तो जो ये चीजें पढ़ा रहे हैं आज के डेट. आपको बेसिक समझना है. आप कंटिन्यूअसली एफर्ट मार रहे हो कि नहीं यार मेरे को बना देना है, 10 मिनट में बनाना है, 5 मिनट में बनाना है, तो वो तब होगा ना जब सॉल्व कर पहले से सीखे हुए हो. अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा डीएसए का तो कैसे सॉल्व करें. इसके लिए यार पढ़ना पड़ेगा चीज को. ओके, वो प्रॉब्लम ये है कि हम जो पढ़ते हैं ना, जैसे हम बना तो देंगे उस क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स से. एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि यू हैव टू मैच एन स्ट्रिंग, ये छोटा सा स्ट्रिंग, सपोज देयर इज सब स्ट्रिंग where it is coming in this entire sentence, what you will do, you will make a window and just search it every time. Okay, every time you just increase the window. अच्छा 0 to 3, suppose it's a 3 length string, you will check for 3 कि हाँ यहाँ मैच कर रहा है, नहीं तो नेक्स्ट उसके लिए मैच कर रहा है, नहीं अगले. तो आप तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दियो. सॉल्व तो आप कर रहे हो उसको, इट इज करेक्टली यू आर सॉल्विंग इट, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैज इंक्रीज. उसको सॉल्व करने का. फॉर दैट देयर आर सम स्ट्रक्चर्स, देयर आर सम डेटा स्ट्रक्चर. ओके, देयर आर सम टेक्निक्स, जैसे 2 पॉइंटर प्रॉब्लम. आप 2 पॉइंटर बनाओगे, एक राइट से आएगा एक लेफ्ट से आएगा, उन दोनों के बीच कुछ लॉजिक लगाओगे जिससे हो जाए, वो ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व हो जाए. सो दिस थिंग्स यू हैव टू लर्न इट. अगर आपको खुद से दिमाग में नहीं आ रहा, खुद से जनरली नहीं आता है, फॉर आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेल शेप कर्व, जनरली नहीं आता है. ठीक है, so at that time we have to think about कि what approach I'll follow. Okay, how I'll solve it. Or at that time, any classes and the channels, there are lots of YouTube videos for everything. I'll just share something with you guys कि जहाँ पे बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको वो चीज पढ़ाते हैं, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं. And there you will get to know and then you are able to solve. इसीलिए मैंने बोला कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्व करने के बाद उसको छोड़ो मत, उसको वापस रिवाइज करो. तब आपको समझ में आएगा कि इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनाने. आप एक क्विक सॉर्ट सॉल्व करते हो, उस क्विक सॉर्ट के बेसिस पे आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. ये आपको समझना पड़ेगा. हम लोग वही चीज को छोड़ देते हैं. हमें लगता है हमने कर लिया, अगला क्वेश्चन आएगा हम दिमाग लगा लें. ऐसे नहीं, मतलब दिस नॉट अ गुड अगर स्पेशली आपको प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करें. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ Sir, I want to ask that how much DSA question I solved so that I confirm that I can clear service based or product based company. 1 second हमें. हाँ 1 second. ये बंद कर. Hello, there was an issue. Sorry. So, just can you repeat the question again? Yes, sir. So my question is that how much lead code or hacker rank question I have to solve so that I confirm that I can clear any company like service based or product based. Okay. So, first thing is this कि एक तो कुछ लिमिट नहीं है कि कितना सॉल्व करना चाहिए, कोई ह्यूरिस्टिक लिमिट तो नहीं है. आई विल नॉट से कि देयर इज सम लिमिट्स कि इतना क्वेश्चन करने के बाद हो जाएगा. बट जनरली इफ यू आर गोइंग फॉर अपीयर फॉर अमेजन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, और माइक्रोसॉफ्ट. सपोज माइक्रोसॉफ्ट हैज आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, like 30-40 questions. Today you know that 40 questions they have asked. That 40 Yes. questions you should remember. Like you should remember it. क्या पूछा, कैसे पूछा था, कैसे सॉल्व करना, और उन पे बेस्ड कुछ भी नहीं छूटना चाहिए. सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन. एक, आप बेसिक प्रिपेयर करते हो पहले, ये क्वेश्चन अगर आए तो कभी नहीं छूटेगा, जो है कि माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन. इन पे अगर आएगा तो ये तो बनाऊंगा ही मैं. इसके बाद होता है डिराइव्ड क्वेश्चन. डिराइव्ड क्वेश्चन होते हैं कि इनके बेस पे कुछ एक्स्ट्रा एडिशन करेगा तो वो भी मैं कर पाऊंगा, वो होता है डिराइव्ड क्वेश्चन. और थर्ड होता है हार्ड. उसके लिए थोड़ी सी टाइमलाइन चाहिए होती है, आपने बहुत दिन प्रैक्टिस किए तब वो सॉल्व होता है. बट आई डोंट थिंक सी कि अगर आप मीडियम लेवल तक पहुंच जाते हो, अगर आप डिराइव्ड क्वेश्चंस और बेस्ड क्वेश्चंस को कर पाते हो, देयर आर स्ट्रांग चांसेस दैट यू विल गेट सिलेक्टेड इन वेरी गुड कंपनी. यू विल गेट अ गुड पैकेज, लाइक आराम से
20 लाख 25 लाख आराम से अर्न करोगे. सो दैट बट उसके लिए भी पहुंचने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. Okay, sir. Any more question, guys? Anything other things? Does FANG require hard level questions? Yeah, sometimes. If you are going for SD2 and SD3, they require hard questions. But utna starting ke liye sometimes they don't ask medium level questions that you get selected. If you are directly applying for 50 lakh package, then definitely they will ask you hard questions. Okay, तो वो रहता है. But you will do it. Don't worry. आप अगर प्रैक्टिस में रहोगे ना, if you will continuously practicing it, ये एक दिन की चीज नहीं है, ध्यान रखो. आपको कल आप हैकर स्टार्ट करो, अगले दिन आप कंपनी में सेलेक्ट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना. इट विल टेक टाइम. जैसे गेट में टाइम लगता है, जैसे हर एग्जाम में टाइम लगता है, तो वैसे ही इसमें भी टाइम लगेगा. एटलीस्ट 6 months वी बिलीव. आई बिलीव 6 months. 6 months आप कंटिन्यूस अच्छे से डिलीजेंटली कोड कर रहे हो, एवरी डे यू आर फोकसिंग एंड यू आर लर्निंग अप्रोप्रिएटली, then you can at least get 12 lakh 13 lakh 14 lakh पैकेज तो मिल जाना चाहिए. दैट वी बिलीव कि अगर आपने सही से 6 महीने सही से पढ़ाई की है उस चीज की, वी बिलीव उतना तो आपको करना चाहिए. उससे कम पे तो आपको खुद नहीं सेटिस्फाई होना चाहिए कि क्या ही हुआ. ठीक है, थोड़ा सा वो आपको थोड़ा बार हाई करके रखो कि हाँ इतना तो कर पाएंगे, इससे कम में क्या होगा. बाकी हो जाएगा. अपना परेशान होने की जरूरत नहीं है उस चीज में. आपको उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आपको सीखना है. एक क्वेश्चन नहीं बने कोई बात नहीं. एक चीज ध्यान रखना, गेट में पहुंचो, मैं बताता हूँ, सेकंड पेपर स्टार्ट करो, 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट करो, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन भी नहीं बने ना, घबराना नहीं. ये किसी भी एग्जाम के लिए ध्यान रखना, एनी एग्जामिनेशन. स्टार्टिंग के 10 20 50 क्वेश्चन नहीं बनते, कोई बात नहीं है, ठीक है, नेक्स्ट बन जाएंगे. ये समझ के अपने को मोटिवेट रखना है, क्योंकि वही 3 आवर्स है, आप सब कुछ कर सकते हैं. डिमोटिवेट होने के लिए भी है, मोटिवेट होने के लिए भी वही 3 आवर्स. टाइम हैज अ वैल्यू. वहां पे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना. वहां पे ये नहीं याद करना है कि यार मेरी मतलब आई ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम अ वेरी इकोनॉमी, मतलब वहां पे कोई इकोनॉमी की दिक्कत है मेरे घर पे, बट मैं आई नेवर इन एग्जामिनेशन आई डोंट फील, आई फील लाइक अ किंग. अब मैं राजा हूँ, आज तो राजा हूँ, आज मुझे अपने हिसाब से आंसर लिखना, बिकॉज दैट 3 आवर्स यू हैव, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा. एंड सेम फॉर द कोडिंग क्वेश्चन, वो 1 घंटा आपके हैं, वहां आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा, आप वहीं सेलेक्ट हो. मैं कितना भी यहाँ बता दूं, अब वहां सेलेक्ट नहीं होने वाला. सेलेक्ट हो आप वहीं होने वाले हो 1 घंटे के इंटरव्यू परफॉर्मेंस. तो वहां वो 1 घंटे के इंटरव्यू परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू एवरी डे यू आर डूइंग. एवरी डे मतलब ऐसा नहीं कि किसी दिन दोस्त के बर्थडे का सेलिब्रेशन है तो नहीं जाएंगे, चले जाओ, वो भी करो. ऐसा नहीं, अपने आप को बहुत फोर्स भी नहीं करना कि एकदम एकदम हार्ड एंड फास्ट है, मतलब 1 मिनट ही बर्बाद हो गया तो फिर तो नहीं निकलने वाला, ऐसा नहीं होता है. 1 मिनट 5 मिनट से कोई एग्जाम ना सेलेक्ट होता है ना रिजेक्ट होता है. सो यू हैव टू कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए. दैट इज इट. सर एक और क्वेश्चन है कि बार्क इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं? यार बार्क में कोई अगर रेडी हो तो मैं उसको डेमो दिखा सकता हूँ. एनीवन इज रेडी विद एनी सब्जेक्ट, सो आई विल स्पीक अ डेमो ऑफ दैट. यस सर. कौन, मतलब आप में से कोई समवन इज रेडी टू टेक दैट क्वेश्चन? यार डरो मत पहले तो. आप लोग आराम से आओ, मैं इंटरव्यू लेके कोई सिलेक्शन नहीं करा रहा हूँ, तो आप फ्री हो गए हो ना, इतना क्यों डर रहे हो इस चीज. एक कॉलेज की क्लास है ही नहीं, पहले तो आप फ्री की बात करो, इसलिए मैं इनफॉर्मली बात कर रहा हूँ. आराम से बात करो. डोंट बिलीव दैट द साइंटिस्ट इज टॉकिंग टू यू, बिलीव दैट यू आर वन ऑफ द सीनियर इज टॉकिंग टू यू वेरी फ्रेंडली. आराम से आप कोई भी आओ उसको, एंड कोई भी जो मन करे आप एक बार लिखो कमेंट में, आई जस्ट काउंट क्वेश्चन टू दैट. डोंट वरी. No one again. I respected. इस क्लासरूम का माहौल चल गया है पूरा. खैर ठीक है. सो आप बताओ, कोई आपसे ही पूछ लेता हूँ. अमृत, यस सर. आप बताओ कोई सब्जेक्ट. क्या सर? कोई सब्जेक्ट बताओ, एनी फेवरेट सब्जेक्ट. जैसे आई कैन ऐसे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम. Okay, ठीक है. Data structure algorithm is there. So suppose they will start with a question that suppose I want to do there is an operating system. उसमें
we are trying to have a scheduling type of thing. मतलब machine learning के application schedule होते हैं. So what kind of algorithm, scheduling algorithm I'll use in that? What type of data structure you'll use it for that? आपको रिप्लाई करना पड़ेगा बीच में, तभी बता पाऊंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सर अभी उतना डीप मालूम नहीं है हमको. डीप कुछ नहीं है अरे, आपसे क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपको अपना बताता हूँ. ठीक है, आप लोगों को भी सुनने के मूड में हो, पता नहीं मैच देखते हो सुन रहे हो. ठीक है, सुन लो आप लोग कहानी की तरह. तो जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं वो तो क्रॉस क्वेश्चन फॉलो करें. अगर मैंने बोला ये कि सपोज मैंने मुझे एक मशीन लर्निंग एप्लीकेशन चलाने के लिए सिस्टम बनाना है एंड दे आर गोइंग टू शेड्यूल इट, तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करो. सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों बनाएंगे, जैसे क्यों डेटा स्ट्रक्चर. क्यों में क्या करेंगे, जिनके रिक्वेस्ट आए उनको हमने उससे करके रखा पूरे, और एक एक करके मैं उनको इंसर्ट करा रहा हूँ उनके एप्लीकेशन चलाने के लिए सॉफ्टवेयर. ओके ठीक है, फिर वो पूछेंगे क्यों यूज कर रहा हूँ और क्यों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है. So then you have to explain that कि what is the insertion capacity and what is the deletion मतलब time complexity for the application. फिर वो बोलेंगे क्यों का implementation कैसे करते हो, तो आप बोलोगे array से करेंगे या linked list में करेंगे. linked list में क्या प्रॉब्लम है, array में क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, array से क्यों दिक्कत है, फिर linked list में क्यों आते हैं, या फिर linked list में क्या दिक्कत है कि array में आते हैं. ठीक है, और कोई efficient implementation पता है क्या, और क्यों के क्या यूज केसेस, कहीं और भी क्यों होता है क्या सॉफ्टवेयर में या OS में या नेटवर्किंग में कहीं भी जो आपको पता हो. ठीक है, इस टाइप से दे वो अहेड विद द क्वेश्चन, वो ऐसे रुकते नहीं हो चीजों पे. लेकिन इन सबके अगर आपने गेट सही से पढ़ा हुआ है ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे, ऐसा दिक्कत नहीं कि वो लोग एकदम डीपली जाकर पूछते हैं. डीप इन बेसिक्स, नॉट हाई लेवल. ये ध्यान रखना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना. डीप बेसिक्स में पूछते हैं डीप, ऐसा नहीं कोई चीज नहीं जानते वो पूछ रहे हैं आप. वो चीज पूछते हैं जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले से समझा, उससे अलग नहीं कुछ. Yes, sir. I hope most of doubts are cleared. So, बाकी अगर कुछ होता है, so I'll try to join some months after that also. बहुत requirement हुई वैसे भी. But what sources एक question और आया. So you guys should post your questions, because what sources I can go for crack ISRO scientists. See, can you give me hints or something? Palak, for ISRO scientists, first syllabus is GATE. You have to know the GATE syllabus completely. And for that, they see in the first round, जब उनका पहला prelims round होता है, in that they ask easy questions, because GATE क्या है, 3 hours 65 questions. In ISRO 1.5 hours 80 questions. Okay, there is 80 questions in 1.5 hours. So सोच लो आपको कितनी स्पीड से सॉल्व करना है. और आपने अगर पिछले साल के पेपर उठा के देखे तो आपको सीधे सीधे दिखेगा कि द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डिराइव्ड फ्रॉम द गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे ना, वो आपको आता है, तो आप मोर और लेस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन जब पलटते हैं तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दिखता है, उनको एक आध क्वेश्चन इमेज प्रोसेसिंग का दिख जाता है, एक आध क्वेश्चन मशीन लर्निंग का दिखता है. तो अब वो पूछते हैं कि मैं मशीन लर्निंग कहाँ से पढ़ूं. बट क्यों पढ़ना है, पहले गेट पढ़ लो ना, जिससे सॉल्व कर. पूरा तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, पूरा तो मैं भी नहीं सॉल्व कर पाया था, क्योंकि मुझे मशीन लर्निंग आती थी तब भी नहीं कर पाया था. अब कहाँ टाइम है आपके पास, 80 क्वेश्चन 1.5 आवर्स कैसे होगा, पूरा तो हो नहीं पाएगा. आपको जब सॉल्व ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं, तो व्हाई आई विल गो फॉर मशीन लर्निंग क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस व्हिच आई नो. सो गेट सिलेबस क्वेश्चन, और सिलेक्शन गेट सिलेबस के क्वेश्चन पे ही होता है. ऐसा नहीं है कि मशीन लर्निंग से सिलेक्शन होता है कि वो आता है तभी सिलेक्शन होगा. वो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और पूछते ही मशीन लर्निंग, वो बेसिक क्वेश्चन है. उतना तो आपने सुना है, कॉलेज में आपको पता चल गया होगा. सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, इस सारी चीजें तो अपने कॉलेज में भी सुन रखी होंगी. इमेज प्रोसेसिंग की बेसिक चीजें आपने थोड़ी बहुत पढ़ रखी होंगी, और नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, बाकी चीजें सिलेक्शन हो जाएगा. इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आप एग्जामिनेशन कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हो ना, आपके लिए गेट मस्ट है. आपको कोई भी कुछ बता दे, एनीवन इज समवन सेइंग यू, कोई अगर बता रहा है आपको, कोई भी गाइड करने वाला बंदा, क्योंकि मैं खुद अपीयर हुआ, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं खुद दिया हूँ और मैं खुद निकाला हूँ. ठीक है, मैं 3 एग्जाम निकाला, तो मुझे पता है कि वहां पे सिर्फ एक ही चीज से हेल्प मिलती है, वो है गेट का सिलेबस. अगर मेरा गेट का सिलेबस अच्छा नहीं होता, मैं कोई एग्जाम नहीं निकाल पाता, ये आपको गारंटी दे रहा हूँ. कोई भी डायरेक्ट इसरो के लिए नहीं पढ़ाई करता, कोई डायरेक्टली डीआरडीओ के लिए पढ़ाई नहीं करता, सब गेट की पढ़ाई करता, और वहां से सारी चीजें होंगी. आपको वो सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. हाँ, अब ये है कि गेट जैसे टफ क्वेश्चन नहीं आते वहां पे, बहुत नए क्वेश्चन आपको नहीं देखने मिलेंगे भी, तो उसको छोड़ना होता है वहां पे, उसमें नहीं स्टार्ट करना होता है, क्योंकि टाइम कम.
अल्टीमेटली स्कोर लाना है। अब मान लो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ के आया हूँ, मैं उसको 50 घंटे नहीं दूंगा ना सॉल्व करने के लिए, पूरे 2 घंटे उसी को सॉल्व करने नहीं लाऊंगी, मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ के आऊँ वही सॉल्व करूंगा। और चूज भी करना है ना कि ये छोड़ना है वो पकड़ना है। दैट इज द इंटेलिजेंट डिसीजन यू हैव टू मेक। तो वो चीज हमको करनी पड़ेगी। तो वैसे हो जाए उस तरीके से आपका इसरो का एग्जाम निकलेगा। मतलब डायरेक्टली कोई इसरो की बुक्स तो आती नहीं है, और आती भी है तो फेक है, सारे गेट पे बेस्ड है। कोई भी ऐसी किताब नहीं है, अब मैं प्रूव कर दूंगा आपको, तो सारी गेट पे बेस्ड है, कोई भी एक्स्ट्रा किताब। ठीक है, वो शायद मशीन लर्निंग की अलग से निकाल लिए होंगे, वो अलग बात है, बट वैसी कोई किताब होती नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती जिसने ये कोई सिलेबस डिफाइन करके कोई पढ़ा दिया। तो आप वो चीज पढ़ो जो बहुत श्योर आने वाली है, जो आने ही वाली है, वो पढ़ो जिसका कोई गारंटी नहीं। तो वो चीज है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड यू। अगर बहुत फर्दर डाउट्स है आप, यू कैन कांटेक्ट मी। और कोई क्वेश्चन, बिकॉज आई जस्ट एंड ऑफ माय कॉल। Okay, so thank you guys. Thank you for joining. Thank you, sir. So whatever you guys have more questions, so you can directly approach to, or you can directly approach to Amrit. You can convey to me, or you can directly approach to me also. तो गारंटी नहीं है कितना रिप्लाई मैं कर पाऊंगा, बट आई ट्राई टू मेक श्योर कि आप तक आंसर पहुंच जाए जितना आसान पहुंच। तो वर्क हार्ड। यू हैव अ प्रॉब्लम, जस्ट कॉन्टैक्ट। और लर्निंग में कोई बुराई नहीं, आप सीखने में कोई पीछे मत हटो। देखो, ओपिनियन लेते रहना चाहिए, ओपिनियन लो आप अमल करना, आप उसको फॉलो करते हो नहीं, वो आपकी डिसीजन। यू कैन फॉलो इट, यू कांट फॉलो इट, नो इशू, वो आपके ऊपर है। तो जस्ट बी श्योर अबाउट इट। देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट लिंक्डइन प्रोफाइल। आप सर्च कर लो अभिलाष भारद्वाज DRC, मिल जाएगा लिंक्डइन पे। I will share everything. Don't worry, guys. तो आप पर्सनली सर्च करोगे तो आप मिल जाएगा। Okay, Amrit, just keep working like this and keep motivating, keep joining people like this. So thank you for giving me this opportunity, and all the best for you, all of you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Enjoy.